ملتان سمیت دیگر تعلیمی بورڈز کی جانب سے میٹرک نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان صوبہ بھر میں بازی لے گیا۔ پنجاب میں 86% رزلٹ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان پہلے نمبر پر، ملتان بورڈ 85% رزلٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ صوبہ بھر میں سرگودا بورڈ 82.83% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ پنجاب بھر میں لڑکیاں نتائج میں لڑکوں پر بازی لے گئی۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 84% سے زیادہ رہا۔ لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 76% رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ملتان سمیت دیگر تعلیمی بورڈز کی جانب سے میٹرک نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان صوبہ بھر میں بازی لے گیا۔ پنجاب میں 86% رزلٹ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان پہلے نمبر پر، ملتان بورڈ 85% رزلٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ صوبہ بھر میں سرگودا بورڈز 82.83% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور پنجاب بھر میں لڑکیاں نتائج میں لڑکوں پر بازی لے گئی ہیں۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 84% سے زیادہ رہا، جبکہ لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 76% رہا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پنجاب میں 86% رزلٹ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان پہلے نمبر پر، ملتان بورڈ 85% رزلٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ صوبہ بھر میں سرگودا بورڈ 82.83% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پنجاب بھر میں لڑکیاں نتائج میں لڑکوں پر بازی لے گئی ہیں اور لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 76% رہا ہے، جبکہ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 84% سے زیادہ رہا۔ میٹرک امتحانات میں ڈیرہ غازی خان تعلیمی بورڈ کا پہلا نمبر، ڈی جی خان ایجوکیشن بورڈ 86% تناسب کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن نے کلک کر کے رزلٹ آن لائن کیا ہے اور میٹرک امتحانات میں 70,222 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 86.37% رہا۔ میٹرک امتحانات میں ڈیرہ غازی خان تعلیمی بورڈ کا پہلا نمبر رہا۔ ڈی جی خان ایجوکیشن بورڈ 86% تناسب کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن نے کلک کر کے رزلٹ آن لائن کیا۔ میٹرک امتحانات میں 70,222 امیدوار کامیاب ہوئے۔ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 86.37% رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں میٹرک امتحانات میں 70,222 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈی جی خان ایجوکیشن بورڈ 86% تناسب کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ میٹرک کے امتحانات میں کامیابی کا تناسب 85% رہا۔ میٹرک کے امتحانات 1,11,499 طلبہ نے حصہ لیا۔ میٹرک امتحان میں 93,622 طلبہ پاس ہوئے۔ سائنس گروپ میں پاس ہونے والے طلبہ کی شرح 99.50% رہی۔ سائنس گروپ میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی شرح 92.35% رہی۔ سائنس گروپ میں کامیاب طلبہ کی شرح 88.79% رہی۔ آرٹس گروپ میں پاس ہونے والے طلبہ کی شرح 75.38% رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے، ملتان بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ میٹرک کے امتحانات میں کامیابی کا تناسب 85% رہا ہے۔ میٹرک امتحان میں 93,622 طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ سائنس گروپ میں پاس ہونے والے طلبہ کی شرح 99.50% رہی ہے۔ سائنس گروپ میں کامیاب ہونے والی طالبات کی شرح 92.35% رہی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، ملتان بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ میٹرک امتحانات میں کامیابی کا تناسب 85% رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے سالانہ جو امتحانات کے نتائج ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت تقریباً 85% جو کامیابی کا تناسب ہے وہ رہا ہے، اور اوورآل اگر ہم بات کریں تو 85% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو 1,11,000 سے زائد طلبہ نے امتحان میں شرکت کی تھی، جو ہے وہ طلبہ و طالبات نے داخلہ لیا تھا، جبکہ 1,10,000 سے زائد طلبہ نے امتحان دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تو ان کی تعداد 93,000 سے زائد رہی۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنٹرولر امتحانات موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر رزلٹ کیسا رہا ہے، کتنا کامیابی کا جو تناسب ہے وہ رہا ہے؟ جی، رزلٹ ماشاءاللہ بہتر رہا ہے۔ اس سال رزلٹ 85% رہا ہے۔ اوورآل ہماری پرسنٹیج 85% ہے، جو کہ پچھلے سال سے
تقریباً 8% جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پچھلے سال جو ہے 76.81% تھا رزلٹ، تو اس سال یہ امپروو ہوا ہے، اور اس کی وجہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ رزلٹ کا جو ٹیبولیشن فارمولا ہے وہ ہے کہ ہم نے ایگریگیٹ کر کے پاس کیا ہے، جو پاس پرسنٹیج ہے وہ نکالی گئی ہے، پریکٹیکل کے نمبر ایڈ کر کے جو ہے کنسالیڈیشن کر کے پاس کیا گیا، تو بہرحال پھر بھی یہ پچھلے سالوں کی نسبت رزلٹ بہتر ہے۔ ہمارے 93,622 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں، اور اوورآل پرسنٹیج 85% رہی ہے۔ 1,10,142 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے تھے، جن میں 93,622 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے، اور 85% پاس پرسنٹیج رہی ہے۔ سر، اگر ہم سائنس آرٹس گروپس کی بات کریں تو کس گروپ کا رزلٹ بہتر رہا ہے اور کس گروپ کا رزلٹ جو ہے وہ کم، اس کی جو کامیابی کی شرح وہ رہی ہے؟ یہ ہمیشہ کی طرح رزلٹ میں سائنس کینڈیڈیٹ کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے اور ہیومینٹیز گروپ کا رزلٹ ویک ہوتا ہے۔ اس سال بھی اسی طرح ہی رزلٹ ہے۔ اگر ہم پاس پرسنٹیج کا ذکر کریں سائنس کا، تو اس میں سائنس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 87% ہے اوورآل، اور ہیومینٹیز گروپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 66.05% ہے۔ تو یہ پاس پرسنٹیج خاصی زیادہ ہے سائنس کینڈیڈیٹس کی، اور اس میں اگر ہم مزید غور کریں تو ہیومینٹیز گروپ میں یا سائنس گروپ میں، دونوں میں ہی جو بچیاں ہیں ہماری گرلز ہیں وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ سائنس میں جو فیمیل کا رزلٹ ہے وہ 90.53% ہے، اور ہیومینٹیز میں فیمیل کینڈیڈیٹس کا رزلٹ 71.8% ہے، تو گرلز کا رزلٹ کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، اگر ہم یہ پوچھیں کہ ری چیکنگ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا پروسیس ہے؟ ان کے لیے پروسیس شروع ہے، کل سے کینڈیڈیٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، ہارڈ کاپیز اپنے فارم کی فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جمع کروائیں، ان کو ایک ڈیٹ جو ہے دیں گے، 15 دن کے اندر رزلٹ نکلنے کے بعد 15 دن کے اندر وہ اپنی ری چیکنگ کی درخواست دے سکتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کی یا جتنے بھی سبجیکٹ وہ چاہے اس کی ری چیکنگ جو ریکویزٹ فیس ہے ادا کرنے کے بعد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، بھاولپور بورڈ کے زیر اہتمام بھی میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امتحانات میں کامیابی کی شرح 82.70% رہی۔ ریگولر امیدواروں میں کامیابی کی شرح 87.93% ہے۔ پرائیویٹ امیدواروں میں کامیابی کی شرح 64.89% رہی، جبکہ میٹرک سالانہ امتحانات میں 14,278 امیدوار فیل ہو گئے ہیں، اور سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر 82,511 امیدوار شامل ہوئے۔ بہاولپور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ امتحانات میں کامیابی کی شرح 82.70% رہی۔ ریگولر امیدواروں میں کامیابی کی شرح 87.93% رہی۔ پرائیویٹ امیدواروں میں کامیابی کی شرح 64.89% رہی۔ میٹرک سالانہ امتحانات میں 14,278 امیدوار فیل ہو گئے۔ سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر 82.511 امیدوار شامل ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، سرگودا بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2023 کا اعلان کر دیا۔ میاں والی میں کامیابی کا تناسب 80.15% رہا۔ آرٹس گروپ کے 897 طلبہ و طالبات پاس ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، سرگودا بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2023 کا اعلان کر دیا ہے۔ میاں والی میں کامیابی کا تناسب 80.15% رہا۔ اس حوالے سے اختر مجاز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اختر مجاز، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سرگودا بورڈ نے میاں والی کے جو میٹرک کے امتحانات ہیں ان کے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بات کی جائے جب میاں والی کے طالبہ و طالبات کی تو 17,781 طالبہ اور طالبات نے میٹرک کے امتحانات میں حصہ لیا، جن میں پاس ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 14,078۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹرک کے امتحانات میں کامیابی کا جو تناسب ہے وہ 79.15% رہا ہے۔
उसके अलावा साइंस ग्रुप में 13,181 तलबात पास हुए हैं। कामयाबी का तनासब 80.15% रहा है। आर्ट्स ग्रुप के 897 तलबात कामयाब हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ताहाल पोजीशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट नहीं दी गई और तकरीबन 1000 से ज्यादा सफहात पर मुश्तमिल ये रिजल्ट आया हुआ है। सरगोदा बोर्ड में पोजीशन होल्डर जो हैं उनकी अनाउंसमेंट बाद में दी जाएगी। जी अख्तर मजाज में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक नताज में लड़कियां बाजी ले गईं। भावलपुर बोर्ड के मैट्रिक नताज में पहली 3 पोजीशंस में से 2 लड़कियों के नाम। भावलपुर की दुआ फातिमा ने 1100 में से 1084 नंबर लेकर पोजीशन हासिल की। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं ताहिर जोइया। बिल्कुल जी, भावलपुर शहर के लिए इजाज़ की बात है कि मैट्रिक के नताइज में गर्ल्स जो हैं वो बाजी ले गई हैं। हमारे साथ दुआ फातिमा मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक के नताइज में पहली पोजीशन हासिल किया। स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से दुआ फातिमा को हार भी पहनाया गया, साथ साथ जो मिठाइयाँ हैं वो भी तकसीम की जा रही हैं। दुआ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपने मेहनत की, आपको मुबारक हो, क्या कहती हैं, कितनी मेहनत की आपने? मैंने बहुत मेहनत की है, अल्लाह का शुक्र है उसने मेरी मदद की मेहनत करने में, और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल साहिबा, टीचर्स, मेरे वालिदैन, सब ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये हासिल कर सकूं। 8 आवर्स तकरीबन पढ़ा करती थी और जब आप क्योंकि मुझे पता था कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड होना ज़रूरी है। तो बस यही तालीम मुझे मेरे टीचर्स और वालिदैन ने भी दी और मैंने इसी पर अमल किया जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पर खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल जी, आपकी बनती भी है, आपने मेहनत की है, प्रिंसिपल साहिबा मौजूद हैं, कितनी खुशी की बात है आपके इदारे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो बहुत ही प्राइड की बात है कि हम ख्वाब देखा करते थे कि अल्लाह ताला हमें उस इज़्ज़त से नवाजे, हमारे इदारे को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे डिवीज़न को, कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा प्राइड बने। और दुआ तो हमेशा से ही हमारी रही है, दुआओं में भी रही है और साथ हमारा फोकस भी रहा है मेरी टीचर्स का, जिन्होंने बहुत इनके लिए मेहनत। और ये देखें कि ग्रुप बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स के, वो ग्रुप में डे एंड नाइट उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को बेस्ट गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करें। मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम उनके साथ होती रहती हैं। इस साल तो हमारे एग्जाम इमरजेंसी थी जिसके तहत हमने बच्चों के टेस्ट, यानी एक चेन थी टेस्ट की जो बच्चों की चल रही थी, तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम पे ही फोकस रहा। लेकिन जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उस पर आपको पता है डेफिनेटली ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे हीरे होते हैं जिन पे थोड़ी सी मेहनत से, तराश फराज से ये अपनी चमक दमक जो है ना वो दुनिया को खीरा करने के लिए काफ़ी होती है। बिल्कुल जी, वालदा मौजूद हैं, हम उनकी आंखों में आंसू भी देख रहे हैं। वालिद हयात होते तो ज़्यादा खुशी महसूस होती है, आपको क्या कहेंगी? सर, जो खुशी अल्लाह ताला ने आज मुझे दी है बच्चों के हवाले से, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूं। बस अल्लाह ताला ऐसे कहें कि आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा नवाजता है और मेरे बच्चों ने भी मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इसका अजर दिया है। अल्लाह ताला आगे भी इनको ऐसे कामयाब करे। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनके रास्ते में हाल जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो सकें। शुक्रिया। बिल्कुल जी, खुशी का मौका है और खुशी का मौका स्कूल में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं जी हमने भरपूर बच्चों पर मेहनत की है जिसका सिला जो है वो मिला है। और साथ साथ जो दुआ फातिमा उसका भी यही कहना है कि आगे जाकर वो डॉक्टर बनेंगी और उनकी जो वालदा हैं वो खुशी से निहाल है। उनका ये कहना है कि अगर उनके वालिद दुआ फातिमा के होते लड़कियां बाजी ले गई हैं। ताहिर जो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुरेवाला दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होने लगा। मुतादद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। जगह जोया समेत दीगर बस्तियों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं बुरेवाला में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ गया है, पानी का बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से काशिफ चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ, आगाह कीजिएगा हमें। लेकिन छोड़ा गया दूसरा पानी का रेला जो है वो इस वक्त बुरेवाला चिश्तियां के इलाका से गुजर रहा है, जिसके बायस जो है वो बुरेवाला और चिश्तियां की बस्तियां जो हैं वो पानी तेजी आ गई है। इसके साथ साथ जो है वो में भी बतदरीज जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो सैलाब की तबाहकारियों की, तो सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। जो बस्ती है जग्गा जोया उसकी रास्ता सड़क जो है वो भी बह गई है, टूट गई है। इसके साथ साथ जो है वो मोजा जमलेरा समेत जो है वो
यूनियन काउंसिल 55 की जो है वो मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। दूसरी जानब सैकड़ों एकड़ जो है वो मजीद जो है वो फसलें ज़ेर आब आ बस्तियां चुकी ज़ेर हैं। आब आ रही हैं। काशिफ चौधरी सैलाब की सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोनसा में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल, कच्चे के 30 से ज़ायद मुआवजात ज़ेर आब, हजारों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई, बरसाती नाले डूब गए और 10 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं मकीनों का मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। इस हवाले से अजमत बुज़दार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अजमत, आगाह कीजिए। शरीफ में हालिया बारिशों के बाद मुकम्मल एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल है। सुलेमान में बारिशों के बाद बरसाती नदी नाले संगढ़ में इस वक्त तुगयानिया और नाला संगढ़ में 10 साला बच्चा मोहम्मद सलीम के बस्ती कलाती का रिहायशी था डूब कर जाँ बहक हो गया है। लाश को रेस्क्यू ने निकाल कर रवाए किंग के हवाले कर दिया है। जबकि सिंध से मुलिका कट्टी की जो इलाके हैं जो सीडौना के, उसमें से 30 ऐसे मुआवजात हैं जो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं, जिनमें काश्त फसलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जबकि रोड भी तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू की जानिब से वैसे लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन लोग अपना घर बार माल बेची छोड़ने को तैयार नहीं है और लोग मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए और उनके नुकसान का अजाला किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अजमत बुज़दार आपका। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देते हैं, इंतजामिया मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाई चनाब और मुलहका इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ जो है वो सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो कंट्रोल रूम मुहर्रमुल हराम में इस्तेमाल किया गया था, उसी कंट्रोल रूम में दरियाओं के पानी की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस वक्त दरियाए सिंध में जो पानी की आमद है वो 3,68,000 क्यूसिक से ज़ायद है, जबकि अखराज भी इतना ही है, जबकि दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,05,000 क्यूसिक है। इंतजामिया के इस हवाले से क्या तैयारियाँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है दरियाओं में पानी की? देखें, जो बात आपने बताई है कि इतना फ़्लो है दरियाओं में, तो उस बारे में मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये वो फ़्लो है जो दरिया का जो कुदरती गुज़रगाह है उसके अंदर से ही गुज़रेगा। जहाँ तक चनाब की बात है तो चनाब की कुदरती गुज़रगाह जो है वो 2 लाख क्यूसिक पानी को हैंडल कर सकती है। इसका मतलब अगर चनाब के अंदर इस वक्त हम ये कहें कि तकरीबन 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है, तो वो बिल्कुल दरिया के अंदर ही पानी मौजूद है। जबकि सिंध, इसी तरह हम लोग सिंध को देखें तो जो PDMA की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इस वक्त जो पानी सिंध में से गुजर रहा है वो बिल्कुल निचले दर्जे पे है। इसका मतलब यह है कि सिंध की जो आबी गुजरगाह है उसके अंदर पानी जो है वो उसके अंदर ही फ़्लो कर रहा है। जहाँ तक कंट्रोल रूम का ताल्लुक़ है, हम लोगों ने जो मुहर्रमुल हराम के अंदर कंट्रोल रूम कायम किया था वो अभी भी उसी तरह वर्कआउट कर रहा है। उसी तरह हमारी शिफ्टों के अंदर ड्यूटीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं और कॉन्स्टेंटली वी आर वर्किंग ऑन द एरियाज़ जहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आया सैलाब से कोई नुकसान हो सकता है या नहीं। थैंक यू। जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम उसी तरह कायम है और इस वक्त जो है वो पानी का फ़्लो जो है वो नॉर्मल है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। अलबत्ता किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल हैं। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोटद्दू के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब जारी है। तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,63,428 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डीजे खान कैनाल और टीपी लिंक कैनाल को पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। सैलाब के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र दरियाओं में तुगयानी और सैलाबी सूरत हाल दरिया इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त दरिया सिंध हेड तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह एक हफ्ते के बाद कम होना शुरू हो गया। इस वक्त हेड तोसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 3,63,428 क्यूसेक है। उसके साथ साथ हेड तोसा बैराज से जो 3 नहरें निकाली गई हैं, मुजफ्फरगढ़ कैनाल, टीपी लिंक कैनाल और डीजी खान कैनाल, इन तीनों को बंद कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही पानी का लेवल अप होता है, पानी का लेवल अप होने के साथ साथ जो दरिया की रेत होती है वो नहरों में भर जाती है, जिसके बाद नहरों के किनारे टूटने का खदशा होता है। इसकी वजह से महकमा आबपाशी की जानिब से इन नहरों को बंद कर दिया गया है।
इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ, जो हमारे नशेबी इलाके हैं वो पांड एरियाज वो तो ज़ेर आब आ चुके हैं, वहाँ से लोगों ने नकल मकानी भी की, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म के कोई ज़्यादा नुकसानात नहीं हुए, क्योंकि महकमा आबपाशी एक टेक्निकल तरीके से जितना भी पानी आ रहा है उसको उसी तरीके से आगे उसका अखराज उसको निकाला जा रहा है। लेकिन जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक स्पेल बताया जा रहा है, बारिशों का उस स्पेल के तहत अगर बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मज़ीद बारिशें होने के खदशात के साथ साथ फ्लड आने के खदशात भी लाक हैं। लेकिन हेड तोसा बराज पर इस वक्त निचला दर्जे का सैलाबी रेला ताल हेड तोसा बराज किसी भी किस्म के शफकत मौलाना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं दरियाई सिंध का निचले दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया की जानिब लिया के मुख्तलिफ स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जाहिद सरफराज से जानेंगे। बिल्कुल जी, लिया में निचले दर्जे का सैलाब जो है दरिया सिंध के अंदर जारी है। अगर बात करें दरिया सिंध के नुकसानात से निपटने के हवाले से और सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से जिला लिया के अंदर 20 फ्लड रिलीफ जो कैंप है वो कायम किए गए हैं। करोल लालिसन से कोट सुल्तान तक 72 किलोमीटर की नशेबी पट्टी के अंदर इस वक्त 20 फ्लड रिलीफ कैंप कायम है, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर उनकी हर हवाले से इमदाद की जा रही है। इसी साथ अगर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लिया के अंदर मौजूद फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर, जहाँ पर भी तमाम जो स्टाफ है जो यहाँ पर जो ड्यूटी पर मौजूद अफराद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर तमाम जो सहूलियात हैं वो भी फराहम कर दी गई हैं। प्रिंसिपल रिजवान आलम से मौजूद से बात करें। सर फरमाएगा क्या क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही है? सर यहाँ पे जो है ना फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है और इसके अंदर तमाम तर सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं। हमारे असातिज़ा कराम यहाँ पे 3 शिफ्ट के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे रूम्स तैयार हैं जिसके अंदर जो है ना पंखे भी हैं, इसके अलावा पीने का ठंडा पानी यहाँ पे दस्तयाब है और जो भी जो है ना सहूलियात होंगी वो मुतासरीन को फराहम की जाएंगी। सर ये भी फरमाएगा कि अभी तक कोई मुतासरीन यहाँ पर आए हैं, अगर नहीं आया तो उनके लिए कुक फूड या दीगर इंतजाम कैसे मुरतब किए जाएंगे? जी, ये जो है ना यहाँ पे अभी तक कोई भी सैलाब मुतासर यहाँ पे नहीं आया, मुतासरीन नहीं आए, तो जो भी यहाँ पे आएंगे उनको जो है ना 3 वक्त का खाना जिलाई इंतजामिया की तरफ से फराहम किया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसके अंदर जो है ना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी उनको दिया जाएगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर प्रिंसिपल रिजवान आलम साहब को बताना है कि यहाँ पर जो तमाम इंतजामात हैं वो तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वजह से उनको बताना है कि ताहाल जो सैलाब मुतासरीन है वो यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर नहीं है, लेकिन तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर बात करें तो 20 फ्लड रिलीफ जो कैंप किए गए हैं वहाँ पर इंतजामात जो है मुकम्मल है और इस वजह से दरिया सिंध के अंदर दरमियाना दर्जे का सैलाब के बाद अब निचले दर्जे का सैलाब की कैफियत पैदा हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद सैलाब का अगर खतरा मौजूद होता है या मजीद पानी आता है तो फिर जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम जो इकदाम और इंतजाम। अब आपको बताएं उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल है। हेड पंजनत पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की आमद 1,50,053 क्यूसिक और अखराज 93,603 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं हेड पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल है। हेड पंजनत पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। पानी की आमद 1,05,053 क्यूसिक और अखराज 93,603 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है।